بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستوں، میں لے کر حاضر ہوا ہوں یو جی سی نیٹ جے آر ایف کے اہم معروضی سوالات و جوابات۔ دوستوں، آج کی اس کلاس میں ہم یونٹ 5 یعنی ڈرامہ کے سبھی سوالات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آج ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر انشاءاللہ کل یا پرسوں میں جو ہے ڈرامہ سے جو سوالات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا سوال ہے، ڈرامہ کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہیں؟ جی، تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا تیسرا یعنی یونانی، کر کے دکھائی ہوئی چیز۔ سوال نمبر 74 دیکھیے گا، ذیل میں چند بیانات دیے گئے، انہیں غور سے پڑھیے اور صحیح بیانات کی نشاندہی کیجیے۔ پہلا بیان ہے، ارسطو ڈرامے کے اجزائے ترکیبی 5 بتائے ہیں، اور دوسرا ہے ارسطو نے ڈرامے کی 3 وحدتیں بیان کی ہیں۔ تیسرا ہے بھرت منی 5 چیزوں کو ڈرامے کے لازمی اجزاء قرار دیا ہے۔ چوتھا ہے ارسطو نے ڈرامے کو نقل کی نقل کہا ہے، اور پانچواں ہے ارسطو نے ڈرامے کو عمل کی نقل کہا ہے۔ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا ہمارا تیسرا بی، سی اور ڈی۔ ارسطو نے ڈرامے کی 3 وحدتیں بیان کی ہیں، یہ بات درست ہے، اور بھرت منی نے 5 چیزوں کو ڈرامے کی لازمی اجزاء قرار دیا ہے، اور ارسطو نے ڈرامے کو نقل کی نقل کہا ہے۔ یاد رکھیے گا، ارسطو کے نزدیک جو ہے شاعری نقالی کا ایک عمل ہے، اور ارسطو نے ہی نقل کا تصور افلاطون سے لیا ہے۔ افلاطون سے جو ہے لیا ہے ارسطو نے نقل کا تصور۔ اور جو ہے دوستو، یہاں دیا گیا ہے ارسطو نے ڈرامے کو نقل کی نقل قرار دیا، تو یہ درست ہے، اور افلاطون نے جو ہے دوستو شاعری کو نقل کی نقل قرار دیتا ہے اور اسے عیب قرار دیتا ہے۔ افلاطون جو ہے وہ شاعری کو نقل کی نقل قرار دیتے ہیں اور اسے عیب بھی بتاتے ہیں افلاطون۔ اور یہاں بتایا گیا ارسطو نے ڈرامے کو عمل کی نقل کہا ہے، تو یہ غلط ہوگا، بلکہ یہ ہونا یہ چاہیے کہ ارسطو نے ڈرامے کو نقل کی نقل کہا ہے، اور یہ جو ہے تصور کن سے لیا ہے، تو یاد رکھیے گا افلاطون سے لیا ہے، اور افلاطون صاحب نے شاعری کو نقل کی نقل قرار دیا ہے اور اسے عیب بتایا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہے جو دوستو ہمارا تیسرا رائٹ آپشن ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 75 کی طرف، اور یہاں جو دیا ہے دوستو اے میں ارسطو ڈرامے کے اجزائے ترکیبی 5 متعین کیے ہیں، 5 بتائے ہیں، تو 5 نہیں بلکہ یہاں 6 ہو جائے گا، تو اس اعتبار سے یہاں یہ ہمارا غلط ہوگا۔ سوال نمبر 75 دیکھیے گا، ذیل کے بیانات کو غور سے پڑھیے اور صحیح بیانات کی نشاندہی کیجیے۔ پہلا بیان ہے، اردو میں منظوم ڈراموں کی باقاعدہ ابتدا آغا حسن امانت نے کی تھی، اور دوسرا اردو میں منظوم ڈراموں کی باقاعدہ ابتدا نواب واجد علی شاہ نے کی تھی، اور تیسرا اندر صبا اردو کا پہلا ڈرامہ ہے جس میں اردو نثر کا باقاعدہ استعمال کیا گیا۔ ڈی میں دیے گئے خورشید پارسی اسٹیج کا پہلا دستیاب ڈرامہ ہے، ساتھ ہی ساتھ اردو کا ایسا پہلا ڈرامہ ہے جس میں اردو نثر کا باقاعدہ استعمال کیا گیا ہے، اور ای میں ہے امانت لکھنوی نے واجد علی شاہ کے دور کے ڈرامہ نگار ہیں۔ امانت لکھنوی واجد علی شاہ کے دور کے ڈرامہ نگار ہیں۔ جی، تو سوال نمبر 75 کا صحیح جواب مارک کر لیجئے گا، دوسرا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا اے، ڈی اور ای۔ اردو میں منظوم ڈراموں کی باقاعدہ ابتدا آغا حسن امانت نے کی تھی دوستوں، اور یہاں بتایا گیا اردو میں منظوم ڈراموں کی باقاعدہ ابتدا نواب واجد علی شاہ نے کی تھی، تو یہ غلط ہو جائے، بلکہ امانت نے کی تھی۔ اور جو ہے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اندر صبا اردو کا پہلا ڈرامہ جس میں اردو نثر کا باقاعدہ استعمال ہوا ہے، تو اردو نثر کا نہیں بلکہ اردو نظم کا باقاعدہ استعمال کیا گیا ہے، تو اس اعتبار سے یہاں سی غلط ہوگا۔ اور ڈی میں دیا گیا خورشید پارسی اسٹیج کا پہلا دستیاب ڈرامہ ہے، ساتھ ہی ساتھ اردو کا پہلا ایسا ڈرامہ ہے جس میں اردو نثر کا باقاعدہ استعمال کیا۔ اردو نثر کا پہلا باقاعدہ استعمال جو ہے خورشید میں کیا گیا دوستوں، ضرور یاد رکھیے گا، اردو نثر کا باقاعدہ جو ہے استعمال خورشید میں کیا گیا ہے۔ اور یہاں ای میں ہے امانت لکھنوی واجد علی شاہ کے دور کے ڈرامہ نگار ہیں، تو یہ بھی درست ہے، تو اس اعتبار سے ہمارا جو ہے دوسرا رائٹ آپشن ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں چند بیانات دیے گئے ہیں، انہیں غور سے پڑھیے اور صحیح بیانات کو پہچان کر نشان زد کیجیے۔ پہلا بیان ہے، ڈرامہ اندر صبا مرزا عابد علی عبادت کی فرمائش پر لکھا گیا تھا۔
दूसरा है इंदर सबा को उर्दू का आखिरी बाज़ाब्ता ड्रामा करार दिया गया। तीसरा है इंदर सबा एक मुकम्मल नसरी ड्रामा है जिसमें कहीं भी कोई शेर इस्तेमाल नहीं किया गया। और डी में है इंदर सबा एक मुकम्मल मंजूम ड्रामा है जिसके मुकालमे भी मंजूम हैं। और ई में है इंदर सबा में 15 गीत इस्तेमाल किए गए। और एफ में है इंदर सबा में कुल 8 किरदार हैं। जी दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा, A D E और F। ड्रामा इंदर सबा मिर्ज़ा आबिद अली इबादत की फरमाइश पर लिखा गया था, दुरुस्त है। और ड्रामा इंदर सबा एक मुकम्मल मंजूम ड्रामा है जिसके मुकालमे भी मंजूम है, ये भी दुरुस्त है। इंदर सबा में 15 गीत इस्तेमाल किए गए और इंदर सबा में कुल 8 किरदार हैं। यहाँ दिया गया बी में इंदर सबा को उर्दू का आखिरी नहीं बल्कि पहला ड्रामा करार दिया गया, इस एतबार से यहाँ बी गलत होगा। और इंदर सबा एक मुकम्मल नसरी ड्रामा है तो इस एतबार से यहाँ सी गलत हो जाएगा, बल्कि नसरी नहीं मुनज़्ज़म है, मंजूम ड्रामा है, तो इस एतबार से यहाँ बी सी गलत होगा, A D E F राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 77 है दोस्तों, इंदर सबा हिंदुस्तानी नाटक की बेरिवायत की अंगड़ाई थी और राजा गोपी चंद मगरबी ज़ौक़ की तक़लीद थी। इंदर सबा से मुतल्लिक़ ये राय किस नाक़िद की है दोस्तों? तो इंदर सबा से मुतल्लिक़ ये राय जो है सैयद एहतशाम हुसैन 1912 से 1972 वाले का है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इंदर सबा जब लखनऊ में खेली गई तो लोगों ने इस नई चीज़ को बहुत पसंद किया, हर तरफ इसका चर्चा होने लगा। उसने हमारे ड्रामाई अदब को स्टेज का रास्ता दिखाया और वक्त की शायरा पर ऐसी मशाल जलाई जिसकी रोशनी में उर्दू ड्रामे और उर्दू थिएटर का कारवां चल पड़ा। इंदर सबा से मुताल्लिक़ ये ख्याल किनका है? जी दोस्तों, तो इंदर सबा से मुताल्लिक़ ये ख़याल मसीहुज़्ज़मा का है दोस्तों, ये ख़याल मसीहुज़्ज़मा का है। इंदर सबा से मुताल्लिक़ ये ख़याल मसीहुज़्ज़मा का है कि इंदर सबा जब लखनऊ में खेली गई तो लोगों ने इस नई चीज़ को बहुत पसंद किया, मक़ौल मसीहुज़्ज़मा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 79 है, आगा हश्र ने अपना पहला ड्रामा कितने साल की उम्र में लिखा था? जी दोस्तों, तो आगा हश्र ने अपना पहला ड्रामा जो है 18 साल की उम्र में लिखा था। आफ्ताबे मोहब्बत इनका पहला ड्रामा है जिसे उन्होंने 18 साल की उम्र में लिखा था। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। आगा हश्र कश्मीरी की पैदाइश वफ़ात के बारे में बात करें तो आगा हश्र कश्मीरी की पैदाइश 1879 ईस्वी को बनारस में हुई और वफ़ात 1935 ईस्वी को लाहौर में। सवाल नंबर 20 है दोस्तों, आगा हश्र ने अपना पहला ड्रामा आफ्ताबे मोहब्बत किसके ड्रामे के तर्ज पर लिखा था? जी दोस्तों, तो आगा हश्र कश्मीरी ने अपना पहला ड्रामा आफ्ताबे मोहब्बत जो है वो चंद्रवली के तर्ज पर लिखा था दोस्तों। आगा हश्र कश्मीरी ने अपना पहला ड्रामा आफ्ताबे मोहब्बत को जो है चंद्रवली के तर्ज पर लिखा था। सवाल नंबर 81 देखिएगा, झेल में चंद बयानात दिए गए हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को पहचान कर कलमज़द कीजिए। पहला बयान है, ड्रामा यहूदी की लड़की दी ग्रेट एल्फ्रेड कंपनी हैदराबाद के लिए लिखा गया था। और बी में ड्रामा यहूदी की लड़की का प्लाट WT मानकुरोफ के ड्रामे से माखूज़ है। सी में है, ड्रामा यहूदी की लड़की में रोमनों के उन मज़ालिम की दास्तान बयान की गई है जो उन्होंने मुसलमानों के साथ रवा रखे थे। डी में ड्रामा यहूदी की लड़की का दूसरा हिस्सा मशरक़ी हुर और उर्फ शेर की गरज के नाम से लिखा गया था। और डी में है, ड्रामा यहूदी की लड़की को दूसरे नामों से जैसे मशरक़ी सितारा और वफ़ा के पुतली के नाम से भी स्टेज किया गया है। जी साथियों, तो सवाल नंबर 81 का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, A B D और E। सी को छोड़कर बाकी सभी दुरुस्त हैं। ड्रामा यहूदी की लड़की दी ग्रेट एल्फ्रेड कंपनी हैदराबाद के लिए लिखा गया था और ड्रामा यहूदी की लड़की का प्लाट WT मानकुरोफ के ड्रामे से माखूज़ है। और ड्रामा यहूदी की लड़की का दूसरा हिस्सा जो है मशरक़ी हुर यानी उर्फ शेर की गरज के नाम से लिखा गया था। और ड्रामा यहूदी की लड़की को दूसरे नामों जैसे मशरक़ी सितारा, वफ़ा की पुतली के नाम से भी स्टेज पर पेश किया गया है। सी में दिया गया, ड्रामा यहूदी की लड़की में रोमनों के उन मज़ालिम का दास्तान बयान की गई जो उन्होंने मुसलमानों के साथ रवा रखे थे। तो मुसलमानों नहीं होगा बल्कि यहाँ यहूदी हो जाएगा, यहूदी। तो इस एतबार से हमारा सी गलत हो जाएगा दोस्तों, राइट ऑप्शन दूसरा
हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों सवाल नंबर 82 की तरफ। ज़ैल में चंद बयानात दिए गए हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को पहचान कर निशानजद कीजिए। पहला बयान है ड्रामा अनारकली का इंतसाब हिजाब इस्माइल के नाम है। दूसरा है एहतशाम हुसैन ने ड्रामा अनारकली को अनारकली का अलमिया करार दिया है। और तीसरा है मसीह ज़मान ने ड्रामा अनारकली को अकबर का अलमिया करार दिया है। और चौथा है ड्रामा आगरा बाज़ार नज़ीर अकबर आबादी की ज़िंदगी और उनके तख्लीक़ात पर रोशनी डालते हुए आगरा के एक बाज़ार को दिखाया गया है। और आखिरी है ड्रामा आगरा बाज़ार में नज़ीर के कुल 26 कलाम पेश किए गए हैं। जी दोस्तों, तो सवाल नंबर 82 का सही जवाब होगा आपका चौथा ए और डी। ड्रामा अनारकली का इंतसाब हिजाब इस्माइल के नाम है और ड्रामा आगरा बाज़ार में नज़ीर अकबर आबादी की ज़िंदगी के तख्लीक़ात पर रोशनी डालते हुए आगरा बाज़ार को दिखाया गया है। यहाँ बताया जा रहा है एहतशाम हुसैन ने ड्रामा अनारकली को अनारकली का अलमिया करार दिया, तो नहीं, एहतशाम हुसैन ने ड्रामा अनारकली को अकबर का अलमिया करार दिया, अनारकली का अलमिया नहीं होगा, तो इस एतबार से यहाँ भी गलत हो जाएगा। अब मसीह ज़मान ने ड्रामा अनारकली को अकबर का अलमिया करार नहीं दिया बल्कि जो है एहतशाम हुसैन ने, तो इस एतबार से यहाँ सी भी गलत हो जाएगा। और यहाँ दिया गया ड्रामा आगरा बाज़ार में नज़ीर के 26 कलाम, तो नहीं, नज़ीर के कुल 23 मंजूम कलाम पेश किए गए हैं, तो इस एतबार से दोस्तों हमारा चौथा राइट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ड्रामों के एतबार से सने तसनीफ़ जोड़िए। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। जी दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब मार्क कर लीजिएगा। इंदर सबा हो जाएगा, 1852 में लिखा गया। यहूदी की लड़की 1910 से 1911 ईस्वी के दरमियानी हिस्से में आगाश काश्मीरी ने लिखा। अनारकली को इम्तियाज़ अली ताज ने 1922 ईस्वी में लिखा था। आगरा बाज़ार को हबीब तनवीर ने 1954 ईस्वी में लिखा था। और ड्रामा ज़हाक को मोहम्मद हसन ने 1977 ईस्वी में। इस सवाल का सही जवाब हमारा तीसरा होगा दोस्तों। सवाल नंबर 84 देखिएगा। इम्तियाज़ अली ताज ने किसके बारे में लिखा है कि वह जब कोई ड्रामा या ड्रामे का कोई मंजर लिखते तो मामूली सतह के किसी आदमी, मसलन कुंडेरी बेचने वाले को, किसी पान फरोश को, धोबी बहिश्ती को ज़रूर सुनाते थे और तवज्जो से देखते थे कि उस पर कितना असर होता है। ये तो इम्तियाज़ अली ताज ने दोस्तों आगाश काश्मीरी के बारे में ये बात लिखा है। इम्तियाज़ अली ताज की पैदाइश वफ़ात के बारे में बात करें तो इम्तियाज़ अली ताज की पैदाइश 1900 ईस्वी को हुई है दोस्तों। लाहौर में वफ़ात 1970 ईस्वी को कातिलाना हमले की वजह से हुई है। और यह है दोस्तों अमानत लखनवी के बारे में बात करें तो अमानत की पैदाइश 1815 ईस्वी को, लखनऊ में वफ़ात 1858 ईस्वी को। अगला सवाल देखिएगा। सवाल नंबर 85 है कौन सा ड्रामा कब खेला गया। अब यहाँ इस एतबार से बताना है, दो सही जुमरे की तलाश करना है दोस्तों। तो आगरा बाज़ार 1954 ईस्वी में खेला गया था और इंदर सबा 1854 ईस्वी में खेला गया, तो इस एतबार से हमारा चौथा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ए भी गलत हो जाएगा दोस्तों। सवाल नंबर 86 है इशाअत के एतबार से ड्रामों के दो जुमरे सही हैं। दो सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। जी दोस्तों, तो इशाअत के एतबार से अनारकली 1931 ईस्वी में शाया हुआ है और जो है ज़हाक 1980 ईस्वी में किताबी शक्ल में शाया हुआ है, तो इस एतबार से ए सी हमारा तीसरा राइट ऑप्शन हो जाएगा। सवाल नंबर 87 है ज़ैल में कुछ ड्रामों के नाम और उनके एक्ट और सीन से मुतालिक तफसीलात दी गई हैं। ड्रामों के एतबार से तफसीलात शामिल कीजिए। जी साथियों, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा चौथा। यहूदी की लड़की 3 एक्ट यानी 3 अबवाब और 16 सीन यानी 16 मनाजिर पर मुश्तमिल है। ड्रामा 16 नहीं होगा, 18 होगा दोस्तों। यहाँ यहूदी की लड़की 18 मनाजिर पर मुश्तमिल है, 16 नहीं होगा, दुरुस्त कर लीजिएगा। 18 मनाजिर पर मुश्तमिल है, इसे सवाल बन चुका है। और अनारकली के बारे में बात करें तो अनारकली 3 एक्ट यानी 3 अबवाब और 13 सीन पर मुश्तमिल है। और ड्रामा आगरा बाज़ार 2 एक्ट और 4 हिस्से। ड्रामा ज़हाक हो जाएगा 6 सीन यानी 6 मनाजिर पर मुश्तमिल है।
तो इस एतबार से चौथा राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 88 दोस्तों, झेल में ड्रामा अनारकली के बाब अव्वल यानी आगाज़, जिसका उन्वान इश्क है, उसके चारों मनाजिर यानी सीन और उनके मौज़ूआत दर्ज हैं। मनाजिर के एतबार से मौज़ूआत शामिल कीजिए। ये दोस्तों तो मनाजिर के एतबार से आपका सही हो जाएगा। पहला मंज़र हो जाएगा दोस्तों हरम सरा और पाए बाग के दरमियान एक बारादरी, पहला मंज़र ये आपका हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा सलीम का ऐवान। तीसरा मंज़र हो जाएगा दोस्तों आपका हरम सरा में एक गुलाम गर्दिश। और चौथा मंज़र हो जाएगा हरम सरा का पाए बाग। इसे याद करना पड़ेगा, ये थोड़ा मुश्किल होता है, इम्तहान से 1-2 दिन पहले आप देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो इस एतबार से इस सवाल का सही जवाब का तीसरा हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं सवाल नंबर 89 की तरफ। ड्रामा अनारकली की कहानी की रोशनी में किरदारों के एतबार से रिश्तों को पहचान कर जोड़िए। जी दोस्तों, तो अकबर और सलीम बाप और बेटा, अकबर और दिला आराम आपका हो जाएगा। अकबर और दिला आराम जो हैं दोस्तों, ये मालिक और कनीज़, अकबर और दिला आराम। नादिरा और सुरैया का आपस में क्या रिश्ता है, तो नादिरा और सुरैया ये आपस में बहनें हैं। सलीम और बख्तियार ये दोस्त हैं। सलीम का बेतकल्लुफ़ दोस्त होता है बख्तियार। तो इस एतबार से हमारा पहला राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं सवाल नंबर 90 की तरफ। झेल में से ज़मानी एतबार से ड्रामों की कौन सी तरतीब दुरुस्त है? ज़मानी एतबार से सही तरतीब बताना है। जी दोस्तों, तो ज़मानी एतबार से आपका हो जाएगा दूसरा। इंदर सबा ड्रामा इंदर सबा को अमानत लखनवी ने 1852 ईस्वी में तहरीर किया था दोस्तों। और ये ड्रामा जो है 1855 ईस्वी में शाया हुआ है। याद रखेंगे 1855 में शाया हुआ। और ये ड्रामा स्टेज पर 1854 ईस्वी में जो है पेश किया गया है। 1852 में तहरीर किया गया, 1854 में स्टेज पर पेश किया गया और 1855 में शाया हुआ है। यहूदी की लड़की जो है 1911 और 1910 ईस्वी के दरमियानी मुद्दत में लिखा गया है। यहूदी की लड़की को जो है दोस्तों, यहूदी की लड़की को जो है आगा हशर कश्मीरी ने जो है 1911 से 1910 ईस्वी के दरमियानी हिस्से में लिखा था। और बात करें अनारकली की दोस्तों, तो अनारकली को इम्तियाज़ अली ताज ने 1922 ईस्वी में तहरीर किया था। और ये ड्रामा जो है दोस्तों अनारकली 1932 ईस्वी में शाया हुआ है, याद रखिएगा। और जो है दोस्तों मोहम्मद हसन ने इसे 1931 में बताया है। मोहम्मद हसन साहब जो है बताते हैं ये ड्रामा 1931 ईस्वी में शाया हुआ। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। मोहम्मद हसन के मुताबिक जो है ड्रामा अनारकली 1931 ईस्वी में शाया हुआ। और यहाँ देखिएगा आगरा बाज़ार दोस्तों, तो आगरा बाज़ार जो है जामिया मिलिया इस्लामिया में 1954 ईस्वी में खेला गया है। 1954 ईस्वी में खेला गया है। और ड्रामा जहाक जो है 1980 ईस्वी में किताबी शक्ल में शाया हुआ। आसरी अदब में 1977 ईस्वी। तो इस एतबार से हमारा दूसरा राइट ऑप्शन हो जाएगा। यह है 1852 इंदर सबा, यहूदी की लड़की 1910-11। फिर उसके बाद अनारकली आपका हो जाएगा 1922 और आगरा बाज़ार 1954 और ड्रामा जहाक 1980। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ओह, सवाल तो ख़त्म हो गए, सवाल ख़त्म हो गए इंशाल्लाह दोस्तों। और जो बचा हुआ जो सवाल है कल परसों में हम लोग मुकम्मल कर लेंगे। कल इंशाल्लाह कल ही मुकम्मल कर लेंगे। और फिर उसके बाद से यूनिट 6 में जो है बहुत सारे सवाल हैं। यूनिट 6 में जैसे आपको नावल भी है और उसमें अफसाने हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है यूनिट 6। और उससे जो है बहुत सारे सवालात बनते हैं यूजीसी नेट में। तो इंशाल्लाह कल से जो है यूनिट 6 को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। कल से नहीं, कल तो इसका एक और हिस्सा है, उर्दू ड्रामा का सवालात का एक और हिस्सा है, यानी पार्ट 2 हमारा कल मुकम्मल हो जाएगा। कल ड्रामा हमारा पार्ट 2 जो दूसरा क्लास चलेगा ड्रामा का। और इंशाल्लाह परसों से जो है हम लोग यूनिट 6 को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे।
تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں دوستوں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔